Hello students, good morning. Very good morning to all of you and welcome to online class. Today we are discussing about figures of speech. First we shall learn about apostrophe. You know what is apostrophe? चलो बताओ क्या याद है apostrophe के बारे में? Already you have studied it about in earlier standards. Apostrophe means address करना. Apostrophe means address करना. मगर कैसा एड्रेस करना? एड्रेस मतलब हमारा घर का हमारे घर के एड्रेस की बात नहीं, ये पता है आपको? एड्रेस करना, किसी को बुलाना. ओके, लेट अस रीड द डेफिनेशन. व्हाट डज द एपोस्ट्रोफी सेज? इन एपोस्ट्रोफी देयर इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द नॉन लिविंग, टू द एब्सेंट personified object or idea. दैट मीन्स नॉन लिविंग थिंग को एड्रेस करना है. नॉन लिविंग थिंग, कोई आइडिया. ओके, सेकंड सेंटेंस. Apostrophe as a literary term is a direct address to the dead, absent, or a personified object or idea. It denotes a figure of speech in which someone absent, inanimate, or dead is addressed as if were alive. This sentence is very much important. We are addressing such dead things as if they were alive. जैसे कि वो जिंदा है उस तरह से हम उसे एड्रेस करते हैं, तो वो एपोस्ट्रोफी. बेटा फिगर्स ऑफ स्पीच जो इजी है वो तो हमें जल्दी याद रह जाती है, मगर सारी फिगर्स ऑफ स्पीच के लिए हमें एक बात फॉलो करनी है कि थोड़े थोड़े ड्यूरेशन पर इसे पढ़ते रहना है, जिससे उसके डेफिनेशंस पढ़ो, जिससे उसके एग्जांपल पढ़ो, वो सारे दिमाग में याद रह जाएंगे. ओके, सो यू हैव टू स्टडी एट रेगुलर इंटरवल्स एट होम, देन ओनली यू विल बी रिमेंबर्ड ऑल फिगर ऑफ स्पीच वेल एंड यू विल बी राइट. You will be able to identify the figure of speech in the examination and present and able to reply. The literary apostrophe enables the speaker to develop ideas that might arise naturally to create a vivid image expressing intense emotion. John Keats, he was the great English poet. उसका एक sonnet है Bright Star. The speaker addresses a distant and inanimate star as though the star had human understanding and divine power. ये जो Bright Star नाम की पोएम है, उसमें जॉन कीट जो है वो एक दूर के एक स्टार को उस तरह से एड्रेस करता है जैसे कि वो स्टार उसकी सारी बातें सुन रहा है, उसमें सारी ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है, डिवाइन पावर है. मगर हम जानते हैं स्टार इज अ नॉन लिविंग थिंग. सो हियर द पोएट हैज यूज्ड अ apostrophe. The speaker addresses the star because it has because it has qualities that the speaker desire. People are gods as demonstrated by Shakespeare, who writes in Julius Caesar. Julius Caesar, it's a great drama. It's a great play written by the great English dramatist William Shakespeare. उसमें वो कहता है कि ओ पार्डन मी thou bleeding piece of earth. इसमें ओ कह के वो एड्रेस करता है. ओके, thou bleeding piece of earth, piece of earth को वो एड्रेस करता है. तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो apostrophe है. Thou art the ruins of the noblest man. बेटा कई स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि सर ये THOU क्या है, वो पता नहीं चलता. तो जो PHOU है वो सॉरी THOU है वो U है. वो क्या है? U. It was used in Old English, but in modern English, the writers do not use thou, but they are using you. Even we use you, we are not using thou, but in Old English you will find. And जो art जो है, art, वो R है, ARE, okay, वो R है. Thou art the ruins of the noblest man. That means you are address किया है. That ever lived in the tides of times. Next one,
ये आपको जल्दी समझ में आएगा बेटा। क्या लिखा है इसमें? ओ जजमेंट thou art fled to brutish beast, ओ डेथ। जजमेंट को एड्रेस किया है, डेथ को एड्रेस किया है। मोर एग्जांपल्स। ओ लिबर्टी, why are you so dear? Now you are able to say, can you tell me why this sentence belongs to apostrophe? Because there is given O liberty. What is given here? O liberty. किसे एड्रेस किया है? Liberty. Then second sentence read कीजिए, उसमें क्या लिखा है? O death come soon. O death come soon. चलो बताइए किसे एड्रेस किया है? That's right, death को. That's why we can say that this sentence belongs to apostrophe. O grave, where is thy victory? यहाँ पर grave को एड्रेस किया है. Okay. मिल्टन, thou shouldn't be living at this hour. यहाँ मिल्टन उसको ए एड्रेस तब किया है जब Milton has died. He is no more. That's why here we can say that here personification. O rose, किसे एड्रेस किया है? Rose को. O rose, how sweet you smell and how bright you look. Then you can say clearly that here rose has been addressed and rose is a non-living thing. That's mean non-living things means not human characteristics rose has. Of course, rose is living, it's a flower, but doesn't have human characteristic. That's why we can say that here apostrophe has been used. 6-1. Car, please get me to work today. अभी कोई कार को बोला है, कार चलो आज मुझे ऑफिस ले जा, तो कार को बोल सकते हैं कार इज अ नॉन लिविंग थिंग, वो थोड़ी हमारी बातें समझती है, तो जो कार है वो है एपोस्ट्रॉफी. ओ ट्रीज, हाउ मैजेस्टिक यू आर एज यू थ्रो डाउन योर गोल्डन लीव्स. किसे एड्रेस किया है बेटा यहाँ पर? ट्रीज को. तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? एपोस्ट्रॉफी. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. अगली फिगर ऑफ स्पीच हम पढ़ते हैं और वो है ऑक्सीमोरॉन. ऑक्सीमोरॉन. ऑक्सीमोरॉन क्या है? याद है, 9th में पढ़ चुके हो बेटा आप. ऑक्सीमोरॉन. इन ऑक्सीमोरॉन टू ऑपोजिट क्वालिटीज. इन ऑक्सीमोरॉन टू ऑपोजिट क्वालिटीज are added to the same thing. Basically, an oxymoron is a phrase or figures of speech that takes two words together that appear to have opposite meanings. एग्जाम्पल, कॉन्ट्राडिक्शन इन टर्म्स. कॉन्ट्राडिक्शन मतलब ऑपोजिट होना. इट कम्स फ्रॉम टू वर्ड्स इन ग्रीक. ऑक्सी, ऑक्सी मीन्स मीनिंग शार्प एंड मोरोस मीन्स मीनिंग डल. You don't have to take anything with this Greek meaning, but it's only for GK or explanation. Okay, these are two opposites, so you could say that the word oxymoron is oxymoron. Okay. J. A. Cadden, in his monumental work on literary theory, describes oxymoron is an old but common device in literature, especially in poetry, closely related to antithesis and paradox. Among the examples of oxymoron cited by him are: I like a smuggler, he is the only honest thief. चलो, कौन से दो ऑपोजिट वर्ड्स हैं यहाँ पर? थीफ और ऑनेस्ट. थीफ कभी ऑनेस्ट नहीं हो सकता. ओके. अनदर एग्जांपल इज मिल्टन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ अ हेल इन पैराडाइज लॉस्ट. पैराडाइज लॉस्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्क है मिल्टन का. उसमें कहता है मिल्टन, नो लाइट बट देयर इज डार्कनेस रिदर विजिबल. अभी डार्कनेस विजिबल नहीं होता है. ओके, डार्कनेस ही होता है. सो हियर वी कैन से दैट ऑक्सीमोरॉन हैज बीन यूज्ड. Two terms of contradictory qualities which are opposite in meaning are placed side by side at once of the same thing. Here the writer presents the conflicting ideas which generally look opposite to each other. So the reader is stunned at the beauty and depth of hidden meaning. Here these sentences belong to the definitions
therefore you might be feel it boring or not understanding, but let us understand more examples so that you can have clear idea of oxymoron. Okay, first example, and having nothing he hath all. ये जो hath है वो भी ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है. ओके, उसका मीनिंग होता है हैज. नथिंग ऑल, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं होना, ऑल मतलब सब कुछ होना, तो ये भी एक ऑक्सीमोरन है. इट इज एन ओपन सीक्रेट. ओपन सीक्रेट, सीक्रेट कभी ओपन होता है? ओके, सो दैट इज ऑक्सीमोरन. ही इज रेगुलरली इरेगुलर. Regularly irregular, regularly or irregular, both words are opposite, so we can say that here the poet has or the writer has used a oxymoron. He was feeling sweet pain. जब भी कोई पेन होता है तो वो कैसा होता है? स्वीट होता है? कभी नहीं होता है. So sweet and pain are opposite words, so we can say that the poet or writer has used here oxymoron. Our sweetest songs are those tell of saddest thoughts. Sweetest और saddest. ओके, यहाँ देखिए जहां पर कर्सर घूम रहा है, स्वीटेस्ट और सैडेस्ट. ओके, दोनों के मीनिंग आपको पता है, दोनों ऑपोजिट वर्ड्स है. Suddenly the room filled with a deafening silence. साइलेंस तो साइलेंस होता है, डेफोनिंग मतलब ऐसी आवाज जिससे कान में आपका सुनना बंद हो जाए. ओके, सो हियर डेफोनिंग एंड साइलेंस आर नॉट टू ऑपोजिट वर्ड्स, सो दैट वी कैन से दैट द राइटर हैज यूज्ड हियर ऑक्सीमोरन. द कॉमेडियन वाज सीरियसली फनी. हियर द पोएट writer has two words, seriously or funny. Both words are opposite. You are clearly confused by the situation you have found yourself. तो ये जो दोनों वर्ड है, you are clearly confused by the situation you have found yourself. दोनों situation है वो opposite है. So we can say in all these examples the poet has used a oxymoron. If you are not following, then watch the video again, listen all the sentences again, think deeply about the definition, then you will definitely 100% understand. Okay, so कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ी हमने आज? ओके, एक ऑक्सीमोरन पढ़ी, एक एपोस्ट्रोफी, एक और पढ़ लेते हैं. ओके, बाद में स्टॉप करते हैं. हाइपरबोल. हाइपरबोल जब भी मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो स्टूडेंट्स बोलते हैं सर हाइपरबोल. हाइपर, हाइपर मतलब बहुत ज्यादा, मतलब स्टूडेंट मतलब सर हाइपरबोल एक नया वर्ड उन्होंने इन्वेंट किया है. वो बोलते हैं सर हाइपरबोल मतलब फैकोलॉजी, जो बहुत कुछ फेंकता है. फेंकता मतलब हाथ में लेके फेंकता है ऐसा नहीं, कुछ बढ़ा चढ़ा के बोलता है. ओके, एक छोटा सा अर्थक्वेक आया है और फोन करके बोलता है यहाँ तो इतना अर्थक्वेक आया, इतनी इंटेंसिटी थी कि इतने बिल्डिंग गिर गए, इतने हुआ कुछ नहीं है. मगर कुछ लोगों को ऐसी हैबिट होती है कुछ बढ़ा चढ़ा के बोलना, तो उसे बोलते हैं हाइपर बॉल. चलो उसका एग्जाम्पल देखते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ लिखा है बेटा सेकंड लाइन में, द रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लो इन द बाथ. अभी ब्लड की रिवर्स होती है हाइपरबॉल. आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एजेस. सदियों से मैंने उसे नहीं देखा. व्हाट सदियों से? आपकी एज भी 100 से ज्यादा नहीं हो सकती, शायद ही हो सकती है, तो ये भी हाइपरबॉल है. ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड. उसके हाथ इतने गंदे हैं कि जो अरेबिया वो जो परफ्यूम के लिए फेमस है, उसके सारे परफ्यूम लाके उसके हाथ में डाल दो तो भी उसके हाथ अच्छे नहीं होंगे. तो ये हाइपरबॉल, सारे अरेबिया के परफ्यूम नहीं ला सकते. आई हैव टोल्ड यू टू क्लीन योर रूम अ मिलियन टाइम्स. अभी मम्मी आपको एक टाइम बोल सकती है, 2 टाइम, 3 बार, 10 टाइम, वो तो 50 टाइम बोल सकती है. 1 मिलियन टाइम्स तक कोई किसी को बोल सकता है रूम अपना क्लीन करो. दैट इज हाइपरबॉल. आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स. Of course, eating a horse, that is hyperbole. I have a million things to do today. एक दिन में मिलियन थिंग्स कर सकते हो, हाइपरबॉल. और कुछ एग्जांपल पढ़ो, बहुत इंटरेस्टिंग है.
माई फादर ड्राइव्स 1000 माइल्स पर आवर। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना बेटा, सेकंड या फर्स्ट वाले, वो ऐसे बहुत बोलते हैं। कोई बच्चा बोलेगा मेरे पिताजी तो 100 की स्पीड में गाड़ी चलाते, तो उसका फ्रेंड बोला मेरे पिताजी तो 200। तो कोई बहुत स्मार्ट होगा, वो बोलेगा मेरे पिताजी तो 1000 माइल्स पर कार ड्राइव करते। तो यहाँ पर ये हाइपरबॉल है। आई एट अ टर्न ऑफ फूड फॉर डिनर, तो हियर टर्न ऑफ फूड वो हाइपरबोल है, टर्न ऑफ फूड नहीं खा सकते। मॉम इफ आई डोंट गेट सम डिनर सून आई विल स्टार्व टू डेथ। मम्मी आज मुझे अगर डिनर में कुछ नहीं मिला तो मैं भूख से मर जाऊंगा। अभी एक टाइम आपको खाना नहीं मिले तो मर सकते हो, दैट्स नॉट पॉसिबल। So we can say that poet has used it here hyperbole. I don't think a herd of elephants would be as noisy as this class is today. आज क्लास में इतनी नॉइस है, मेरे क्लास में तो नहीं, ऑनलाइन पढ़ रहे हो आप सब कुछ, तो पूरी शांति है, क्लास जैसा नहीं है। अगर क्लास में ऐसा होगा और कोई सर बोले कि पूरे एलिफेंट्स का हर्ड आ जाए और जितनी आवाज लगाए उससे भी ज्यादा है, तो वो तो हाइपरबोल है, इतनी नहीं हो सकती। It seems to have been raining for 40 days and 40 nights. ये भी हाइपरबोल है, इतनी लंबी देर तक बारिश चलेगी तो दुनिया डूब जाएगी। 12th sentence, the mayor's speech was never ending. मेयर की स्पीच ऐसी थी जो कभी खत्म नहीं हुई, तो ये जो है वो भी हाइपरबोल है। 13 वाला सेंटेंस, आई लाइक दैट आउटफिट बट इट वुड कॉस्ट मी एन आर्म एंड लेग। दैट मीन्स मुझे आउटफिट वो अच्छी लगी, मगर उसकी जो कॉस्टिंग थी वो इतनी ज्यादा थी कि मुझे अपना हाथ और पैर काट के दे दूं तो शायद मैं परचेज कर सकूं। ओके, हाथ और पैर से ज्यादा महंगा क्या हो सकता है, तो ये भी हाइपरबोल है। So understood, clear, very much. Which figure of speech we have learned today? Hyperbole. हमारी देख लेते हैं। हाइपरबोल मतलब बढ़ा के बोलना, फैकोलॉजी। फिर पढ़े हम ऑक्सीमोरॉन, ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं। ओके, इससे पहले पढ़े एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी में क्या करता है, एड्रेस करना, नॉन लिविंग थिंग्स को और एड्रेस करना। इससे पहले क्या पढ़े थे, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या था, नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स की तरह लेते हैं। उससे पहले पढ़े थे मेटाफर, कंपैरिजन होती है और उसमें लाइक और एज यूज नहीं होता है। उससे पहले क्या पढ़े थे, सिमिली। सिमिली मतलब कंपैरिजन बट उसमें लाइक और एज यूज होती है। ओके, सो दिस वाज figures of speech and we have learned total 3 figures of speech today. We are stopping now, but we shall learn more figures of speech in the next class. Okay, thank you, bye bye, see you, have a nice day.